ایک مشہور مفکر کا قول ہے، ایک بیٹی 10 بیٹوں کے برابر ہے۔ معاشرہ اگر اسے سمجھے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ کہانی ہے ایک پاکستانی عورت کی جو ہر صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے۔ پاکستان کی ورکنگ عورت کا دن تب شروع ہوتا ہے جب شہر ابھی سو رہا ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو تیار کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے اور اپنی تھکن چھپا لیتی ہے۔ وہ ماں بھی ہے، ملازمہ بھی ہے، مگر سب سے پہلے وہ ایک عورت ہے جو سب کے لیے خود کو پیچھے رکھتی ہے۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی جنگ جس کا شور کبھی سنا نہیں جاتا۔ کچھ عورتیں شہروں کی صفائی کرتی ہیں مگر ان کی اپنی تھکن کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ ہاتھ صرف مشینیں نہیں چلاتے، یہ پورے گھر کی امیدیں تھامے ہوئے ہیں۔ کچھ عورتیں رات جاگتی ہیں تاکہ گھر میں دن روشن رہے۔ وردی ہو یا سادہ لباس، عورتیں ہر حالات میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیتی ہیں۔ بڑی کرسی پر بیٹھ کر بھی عورت کو خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ہراسانی کبھی لفظوں میں، کبھی خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد بھی عورت کے لیے آرام نہیں ہوتا۔ یہ اس کی دوسری شفٹ ہوتی ہے جو بغیر تنخواہ کے ہوتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے تم کام کرتی ہو اس لیے سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ سسرال کی خاموشی بھی عورت کو توڑ دیتی ہے۔ پاکستان میں کامیاب ہونے کے لیے عورت کو اکثر اپنی خوشی قربان کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی جب وہ ماں بنتی ہے تو اپنی ساری تھکن بھول جاتی ہے۔ جس دن مرد ساتھ کھڑا ہو جائے، عورت کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ قدر پیسوں سے نہیں ہوتی، قدر رویوں سے ہوتی ہے۔ اگر آج کے بعد آپ کسی عورت کو صرف کام کرتی نہیں بلکہ سب سنبھالتی ہوئی دیکھیں تو یہ کہانی کامیاب ہے۔ چاہے دن بھر کام کی تھکن ہو، یہ اپنی ذمہ داری نہیں بھولتی۔ دفتر کی چھوٹی مشکلیں اسے توڑ نہیں سکتی۔ یہ عورت گھر کی اور شہر کی زندگی دونوں کو یکساں محنت سے سنبھالتی ہے۔ دن کے اختتام پر بھی اس کی جدوجہد ختم نہیں ہوتی۔ شام آتے ہی نئی محنت شروع ہوتی ہے جو کبھی دیکھنے والا نہیں۔ گھر کی ذمہ داریاں اور پیشے ورانہ زندگی کا توازن ہر دن چیلنج ہوتا ہے۔ اس کی تھکن کسی کو نظر نہیں آتی، مگر یہ اسے کبھی روکتی نہیں۔ یہ عورت ہر دن کی چھوٹی کامیابیوں پر خاموش فخر محسوس کرتی ہے۔ گھر کے ہر رکن کی دیکھ بھال بھی اس کی روزانہ کی محنت کا حصہ ہے۔ رات کے اوقات میں بھی اس کی جدوجہد ختم نہیں ہوتی۔ یہ عورت ہر قدم پر ثابت کرتی ہے کہ مضبوطی کا نام ہے عورت۔ اس کی چھوٹی قربانیاں کسی کی نظر میں نہیں آتے، مگر یہ معمول ہے اس کی زندگی کا۔ گھریلو اور پیشہ ورانہ کاموں کا بوجھ اسے کبھی توڑ نہیں سکتا۔ یہ عورت خاموش رہ کر بھی اپنے ہر خواب کو زندہ رکھتی ہے۔ ہر صبح ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہوتی ہے، مگر مسکراتی بھی ہے۔ یہ عورت ہر لمحے سب کچھ دیتی ہے، خود کے لیے کم، دوسروں کے لیے زیادہ۔ اگر یہ کہانی ایک مرد کے دل میں بھی
थोड़ी सी हमदर्दी जुगा दे तो ये मकसद पूरा हो गया। पाकिस्तान में औरत को सबसे पहले अपनी हिफाजत का ख्याल रखना पड़ता है, हर लम्हा, हर जगह। चाहे वो छोटी नौकरी करती हो या आलिया अहदे पर बैठी हो, हर औरत की मेहनत बराबर है। बड़ी कुर्सी पर बैठी औरत भी हर दिन छोटे छोटे इम्तिहानात देती है, थकन का कोई फर्क नहीं। घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारी, ये औरत हर लम्हा हर चीज का ख्याल रखती है। दर्द, थकन और कुर्बानियां सबके लिए बराबर हैं, बस मंजर और मकाम मुख्तलिफ हैं। काश हमारी कौम औरत की कुर्बानी को समझे और उसकी मेहनत का एहसास करे। अगर आप किसी औरत को काम करते देखें तो उसकी इज्जत और कदर करें, ये आपसे बहुत ज्यादा काबिल है। मेहनत, कुर्बानी और ताकत हर औरत में छुपी होती है, सिर्फ देखने वाला चाहिए। अगर मर्द समझना शुरू कर दें औरत की कुर्बानियां, तो शायद औरत की सारी थकन धुल जाए और मुआशरा भी बदल जाए। ये औरत दूसरों की जिंदगी बचाती है और लोग उसे नजरअंदाज कर जाते हैं। दिन का एक हिस्सा पेशावर, रात का एक हिस्सा माँ और बहन, ये औरत का मामूल है। दिन भर की मेहनत के बाद भी ये औरत अपनी ख्वाबों को नहीं भूलती। ये औरत ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ती है। हर दिन ये औरत मुआशरती कैद को तोड़ रही है। कभी तालीम, कभी महारत, हर लम्हा उसकी मेहनत की गवाही देता है। अपनी सेहत को नजरअंदाज करके भी ये औरत सब कुछ संभालती है। मोहब्बत उसकी ताकत है, थकन को कमजोर नहीं होने देती। छोटी कामयाबियां भी इसकी बड़ी मेहनत का सिला हैं। ये औरत हर कुर्बानी के साथ अपनी रोशनी बनाती है और मुआशरे के लिए मिसाल है। ये औरत हर कुर्बानी के साथ अपनी रोशनी बनाती है और मुआशरे के लिए मिसाल है। हर दिन उसके लिए खतरनाक होता है। लोग उसे सिर्फ नजरअंदाज नहीं करते बल्कि तंग भी करते हैं। घर आते ही नए इम्तिहान शुरू। हर फैसला उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाता है। तालीम के ख्वाब अक्सर मुआशरती रुकावटों की वजह से टूट जाते हैं। रात के वक्त निकलना भी एक चैलेंज है, खौफ और एहतियात के बगैर मुमकिन नहीं। दफ्तर में भी एहतराम के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है। ज़हनी दबाव, थकन और दबे हुए जज्बात, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्से हैं। मजहब, लिबास या काम, हर चीज पर औरत को मुआशरती तनकीद का सामना है। माली आजादी के लिए हर दिन छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। दिन भर की थकन के बाद वो अपनी खुशी और आराम सब बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी घर में उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती। मर्ज भी उसे रोक नहीं सकता। हर लम्हा जिम्मेदारी की धूप में खड़ी है। ये आंसू जो किसी ने नहीं देखे, हर कुर्बानी का हिस्सा है। इसने अपनी खुशी और ख्वाब अक्सर दूसरों के लिए कुर्बान किए हैं। हर दिन एक नई जंग, और ये औरत हर दिन फतह हासिल करती है। अपने दुख छुपाए दूसरों की मुस्कुराहट के लिए अपने दिल का बोझ सहती है। छोटी कामयाबियां भी अक्सर किसी को नजर नहीं आती, मगर ये औरत पुरअज़्म है। ये औरत की जंग है जो दुनिया कभी नहीं देखती, लेकिन ये लड़ती रहती है। ये औरत हर कुर्बानी के साथ
अपनी रोशनी बनाती है और मुआशरे के लिए मिसाल है। पाकिस्तान में औरत पर सबसे पहला बोझ ये है कि वो अपने आप को बचाए, हर लम्हा, हर जगह। चाहे वो छोटी नौकरी करती हो या आलिया अहदे पर बैठी हो, हर औरत की मेहनत बराबर है। घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारी ये औरत हर लम्हा, हर चीज का ख्याल रखती है। 1 रुपया औरत के लिए वही है जो मर्द के 10,000 के बराबर है, क्योंकि उसका काम हर पहलू से है। काश हमारी कौम औरत की कुर्बानी को समझे और उसकी मेहनत का एहसास करे। अगर आप किसी औरत को काम करते देखें तो उसकी इज्जत और कदर करें, ये आपसे बहुत ज्यादा काबिल है। मेहनत, कुर्बानी और ताकत हर औरत में छुपी होती है, सिर्फ देखने वाला चाहिए। इज्जत और एहतराम छोटी हरकतों से भी मुआशरती तब्दीली ला सकते हैं। तालीम और आगाही मर्दों के रवैये बदल सकती है और औरत के हक में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। जब मर्द औरत की क़यादत की तारीफ करें, मुआशरा ज्यादा मुसावी और मुस्बत हो जाएगा। समाजी ताउन और कदरदानी से औरत की जिंदगी आसान हो सकती है। अगर नई नस्ल एहतराम सीखे तो कल का मुआशरा औरत के लिए महफूज और बेहतर होगा। सिर्फ अपनी मिसाल से भी मुआशरती रवैये बदल सकते हैं। औरत की इज्जत बढ़ सकती है। अगर मर्द समझना शुरू कर दें औरत की कुर्बानियां, तो मुआशरा बदल सकता है और औरत की थकन कम हो जाएगी। एक मशहूर मुफक्कर का कौल है, एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। मुआशरा अगर इसे समझे तो सब कुछ बदल जाएगा। उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे और खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे GDC। अल्लाह हाफिज। एक मशहूर मुफक्कर का कौल है, एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। मुआशरा अगर इसे समझे तो सब कुछ बदल जाएगा।